Dear student friend Falber, today we'll learn about psycholinguistic. We'll learn what is psychology and what is linguistic. We'll learn how language impacts psychology, how psychology affects language. So we'll learn psychology and language, the study of psychology and language. So psycholinguistic combine both knowledge of psychology as well as language. So we'll be learning some key terms related to linguistic. We shall also learn about clauses. So there is adjective clause, noun clause, and there is a verb clause. I'll be teaching you at the end. Moreover, I'll be teaching you about theories. So there is a Piaget theories, there is a cognitive theory, there is the behavioristic theory, and there is innate theory, which is also known as generative grammar like theory, that universal grammar that was given by Noam Chomsky. So we'll be learning all that. Let's see psycholinguistic. First of all, what is linguistic? Linguistic basically is a scientific study of language. So when we study language scientifically, we learn how it is evolved, how it is developed, how it is changed, how etymological and ideological, or you talk about ontological or changes, evolvement in a language. When you study language systematically and scientifically, and you also notice the evolvement in the language, this is basically scientific study of language. So psychology, what is psychology? Psychology is the study, it studies the human mind scientifically in psychology. Then we have psycholinguistic, which is our topic. First of all, we see what is linguistic. We know linguistic is defined as the scientific study of language. We see language scientifically, how it is evolved, वो किस तरह चेंजेस आई उसमें, डेवलप हुई एक लैंग्वेज, और चेंजेस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. We see scientifically, systematically in linguistic. Psychology study mind scientifically. So you know mind, if we just analyze mind, there are two main part of the mind. One is that there is a right hemisphere and left hemisphere. If we talk about the right hemisphere, which is related to the production of the language, that is related to the speaking or productions. The other part of which is left one, it is also known as the Wernicke area. There are two main areas in our brains. One was discovered by the Paul Broca, who was a French physiologist, and the second one was a German physiologist and anthropologist. So they both discovered these areas. The right area is related to the productions, and the left area is related to the a reception of the sounds. So whatever I'm speaking, my mind is also involved, my brain is also involved to produce it, and both are affects each other. So if you left control the right one and right control the left one, so both are related to each other. एक माइंड के एक हिस्से को क्या कहते हैं, वर्निकी एरिया, जो कि लेफ्ट साइड पे होता है, और एक होता है राइट साइड पे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोका एरिया. ब्रोका जो है, पॉल ब्रोका एक फ्रेंच लिंग्विस्ट था, एक फिजियोलॉजिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था. और दूसरा है वर्निकी एरिया, जो कि डिस्कवर किसने किया था, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था. साइकोलिंग्विस्टिक, व्हाट इज साइकोलिंग्विस्टिक? जब हम साइकोलिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं तो हम उसमें ये सारे लैंग्वेज कैसे एक्वायर होती है, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ब्रेन के अंदर कैसे प्रोसेस होती है, ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, ब्रेन कैसे रिसीव करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये सारा सिस्टम जो है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. कॉग्निटिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, माइंड के. इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. और ये क्या है, ये किसको कंबाइन करता है, साइकोलॉजी को भी कंबाइन करेगा साइकोलिंग्विस्टिक, और किसको कंबाइन करेगा अपने साथ, लैंग्वेज को भी. जब लैंग्वेज और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं
तो वो क्या बनता है, साइकोलिंग्विस्टिक। और साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर क्या क्या चीज़ आती है कि कैसे एक लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, एक बच्चा लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, इसमें हम ये देखेंगे कॉग्निटिव सिस्टम क्या है लैंग्वेज का, और ब्रेन के अंदर लैंग्वेज किस तरह प्रोसेस होती है, हम ये भी देखेंगे। और ये सारी स्टडी किसके अंडर आती है, साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर। तो साइकोलिंग्विस्टिक क्या करता है, वो साइकोलॉजी और लैंग्वेज दोनों को कंबाइन जो स्टडी है वो साइकोलिंग्विस्टिक कहलाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट पर्सन यूजेस इन प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। एक बंदा किस तरह लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, एंड हाउ ह्यूमन लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज का मैंने लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस बताया था, हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि डिफाइन लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। अब अक्सर स्टूडेंट जो हैं ये भूल जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, हालांकि बहुत आसान है। एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है, वो लर्न नहीं करता। एक्विजिशन होती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंग्वेज सीखी जाती है, उसे एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग होती है कि आप बाकायदा दाखिला लेते हैं, एडमिटेड होते हैं और क्लास फॉर्मली अटेंड करते हैं, फिर लर्न करते हैं, इट इज़ अ लर्निंग। और लर्निंग और एक्विजिशन जो है ये साथ साथ चलती है। अगर आप यहाँ से कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या इंग्लैंड चले जाएं, तो यू आर इन फैक्ट एक्वायरिंग लैंग्वेज बिकॉज यू डू नॉट एडमिट or you do not get admission in any school or college. You just learning from the environment and atmosphere. You are just hanging out with the friends, and by hanging out with the friends you are learning language. आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और इधर जा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं और साथ साथ वो लैंग्वेज एक्वायर करते जा रहे हैं, आपने कोई बाकायदा एडमिशन हासिल नहीं किया। दिस इज नोन एज द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। लेकिन आप एक स्कूल में दाखिल लेते हैं, बाकायदा आप स्कूल अटेंड करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या वो अदारे को अटेंड करते हैं और डेली बेस पे आप जाके क्लास के अंदर लर्न कर रहे हैं, वो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज है। तो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन। अ चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज because he does not attend any school or college. He acquires from parents. Whatever parents have, they just transfer language to children. जो उनके पास होती है वो अपने किड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो बोलते जाते हैं, वो साथ साथ बच्चा एक्वायर करता जाता है और अल्टीमेटली उसको लर्न कर लेता है। और इसका प्रोसेस जो है पूरा जो है जीन पियाजेट ने बताया, उसकी थीरी है कॉग्निटिव थीरी, जो हम लिटिल बिट यहाँ डिस्कस करेंगे। साइकोलिंग्विस्टिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्पीच परसेप्शन, कि स्पीच कैसे परसेप्ट होती है। द रोल ऑफ मेमोरी, मेमोरी कि इंसान की मेमोरी का क्या, और मेमोरी की दो इकसाम होती हैं। हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन भी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मेमोरी एंड पैसिव मेमोरी। हाँ जी, मेमोरी कितनी किस्म की होती है, एक आपकी होती है एक्टिव मेमोरी और एक है पैसिव मेमोरी। अब हम लोग कितने वर्ड सुनते हैं, क्या आपको सारे वर्ड याद होते हैं? आप सारा दिन मुझसे कितने वर्ड सुनते हैं, या मेरे लेक्चर में जो 2 आवर का 3 आवर का भी मैंने 2 आवर का आपको लेक्चर दिया है, उसमें इतने वर्ड्स मैं आपके सामने बोलता हूँ, क्या आपको सारे याद रहते हैं? यू डोंट रिमेंबर, यू इवन फॉरगेट सर्टेन वर्ड, बट दीज वर्ड आर स्टिल लाइंग इन योर पैसिव मेमोरी। वो आपकी पैसिव मेमोरी में पड़े होते हैं, जैसे ही सामने आते हैं या कोई बोलता है तो फौरन आपको पता चल जाता है ये तो मैंने सुना हुआ पहले। तो इंसान की 2 तरह की मेमोरी होती है, एक एक्टिव मेमोरी, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स मेरे मुंह में से निकल रहे हैं और ये सारे मेरी एक्टिव मेमोरी में बड़े हुए हैं। सो देयर आर 2 पार्ट ऑफ द मेमोरी, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी। वन इज एक्टिव मेमोरी, वट एवर यू प्रोड्यूस, वट एवर यू स्पीक, एंड दे आर in your possessions, they are in your hand, they are in your possession, and they are lying in your active memory, and whenever you need it you can speak it fluently, you can express it fluently. So these words and these kind of memory will be known as your active memory, and the words they are lying in your passive memory, or part of your passive brain or memory, that will be नोन एज पैसिव मेमोरी। ऐसे वर्ड्स जो आपकी पैसिव मेमोरी में पड़े हुए हैं, मौजूद हैं, आपने सुने हैं, आपने पढ़े हैं, लेकिन वो पैसिव मेमोरी में चले गए हैं, जब कोई बोलेगा आपको फ़ौरन याद आ जाएंगे, वो आपकी पैसिव मेमोरी होगी। और ये दोनों काउंट होती हैं। आप इसको
अंडरस्टैंड करें या ना करें ये पड़े रहते हैं। यानी एक्टिव मेमोरी भी होती है जो आपके पास हर वक्त मौजूद है, और एक एक्टिव मेमोरी को बढ़ाने के कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप उनको बार बार बोलें, आप उनको सामने कमरे में लिख लें, आप सुबह शाम उन वर्ड्स को लिखें, लिख के याद कर लें। यानी अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में, अपनी लिसनिंग में सुने उनको, बार बार सुनना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, घर में लिख लें या वाइट बोर्ड पे लिख लें, बार बार देखें, कमरे में लिख के रख लें, डायरी में शाम को लिखें। तो इससे एक्टिव मेमोरी काफ़ी इंक्रीज़ हो सकती है, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। पैसिव मेमोरी हमेशा पैसिव पड़ी रहती है। So psycholinguistic is a combination of both. It is a study of the mental process that person uses in producing and understanding. Psycholinguistic includes the speech of perception, the role of the memory concept of other process in a language use, how social and psychological factor affect the use of language. अब psychological factor और उसके अलावा जब हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरह अफेक्ट करता है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली बड़े मजबूत होते हैं, वो उनका माइंड भी जो है IQ ज़्यादा होगा, ठीक है, उनका ब्रेन जो है वो एक्टिव होगा, उनकी एक्टिव मेमोरी ज़्यादा होगी, वो आप ज़्यादा वाइब्रेट होंगे। तो ये यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है। किसी बच्चे का एक्टिव मेमोरी ज़्यादा होती है, किसी की पैसिव मेमोरी ज़्यादा होती है, एक्टिव कम होती है, कुछ वाइब्रेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये लैंग्वेज लर्निंग में बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करते हैं। वी एंगेज इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज जो, इवन कि हम सुन भी रहे होते हैं तो तब भी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का रोल है। यानी लिसनिंग भी तो लैंग्वेज का हिस्सा है ना। जब लिसन कर रहे होते हैं किसी को, तब भी अगर आपके पास वोकैब ज़्यादा है या आप एक्टिव मेमोरी ज़्यादा है या आप वाइब्रेंट हैं, आप साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है आप में वो ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप मजबूत हैं, तो यू विल बी लर्निंग एंड लिसनिंग थिंग वेरी इजीली। दिस प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन यू वॉच टेलीविजन। जब आप टेलीविजन वॉच कर रहे होते हैं, लिसन टू रेडियो, जब रेडियो को सुन रहे होते हैं, और रीड द पासिंग साइन बोर्ड वाइल ड्राइविंग, राइटिंग अ लेटर, हैव अ कॉन्वर्सेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ साथ होती हैं साइकोलिंग्विस्टिक की ये चीज़ें। क्या, जब आप वॉच कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं, साइन बोर्ड पढ़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ। यूजली दीज लैंग्वेज एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद अ ग्रेट ईज, एंड इट इज़, ईज का मतलब होता है आसानी से, एंड इट्स अ कम्प्लीटली सबकॉन्शियस मैनर। सबकॉन्शियस मैनर वी माइट समटाइम बी अवेयर दैट वी आर सर्चिंग फॉर अ वर्ड। कभी कभार ये होता है कि हम बोल रहे होते हैं तो आप नोट करें कि हम वर्ड को सर्च कर रहे होते हैं, कैसे एडजस्ट करें। जिस बच्चे के पास जितने सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स ज़्यादा होते हैं वो उतना फ्लुएंट होता है। याद रखिएगा बात। एक बच्चा, उसके पास सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स ज़्यादा है तो वो एडजस्ट कर लेगा, एक के पास लिमिटेड वोकैबुलरी है तो वो लिमिटेड वोकैबुलरी से यूज़ करेगा वर्ड। तो कहता है कि फॉर वर्ड्स एंड कंपोजिंग अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस कंपोज कर रहे होते हैं तब भी अगर वर्ड्स आपके पास, अभी मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, एंटोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इस तरह मैं लिखता जाऊँ, मेटाफिजिकल। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे माइंड में हैं तो मैं इनमें से सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, मेरे लिए वैराइटीज़ ऑफ वर्ड्स मेरे पास हैं, मैं जो उनसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है, स्टॉक में मेरे वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं हाउ कैन आई एम यूजिंग। और ट्रेनिंग्स आर अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स, बट वी आर नेवर aware of the actual mechanisms and operations involved in producing and understanding language। और एक बात याद रखिएगा, एक बच्चा जो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं फुल्ली कॉम्प्रीहेंडेबल है मेरी स्पीच और कॉन्वर्सेशन डिस्कोर्स, तो इट मीन यू कैन टॉक एट दिस लेवल एज। अगर आप मुझे फुल्ली कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, मेरे जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं या मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे पास जो नॉलेज है, आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इट मीन यू पीपल आर एट माई लेवल एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंड डिस्कोर्स एंड कन्वर्स लाइक मी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस लाइक मी। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसी तरह की। आप एनी हो, आपका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है वो ठीक है, इसका मतलब। Psycholinguistic is a study of these language processing mechanism.
साइकोलिंग्विस्टिक क्या है? स्टडी ऑफ दीज लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। ये स्टडी है किसकी? एक लैंग्वेज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, तो ये पूरे इस सिस्टम की स्टडी है साइकोलिंग्विस्टिक। Psycholinguistic study how words, sentence and discourse meaning are represented and computed in the mind. Psycholinguistic आपको ये बताता है यानी कि कैसे सेंटेंस जो हैं, डिस्कोर्स होता है पूरा एक चंक, पूरा एक टेक्स्ट, मोर देन सेंटेंस जो होता है वो एक डिस्कोर्स होता है। मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ, एक पूरा लिखी हुई टेक्स्ट वो आपका डिस्कोर्स है, या जो मैं बोल रहा हूँ पूरी कन्वर्सेशन मेरी वो एक डिस्कोर्स है। वो कहता है कि एक पूरे डिस्कोर्स की, एक सेंटेंस की वो किस तरह से माइंड के अंदर जाके रिप्रेजेंट होता है, कैसे वो कॉम्प्रीहेंड करता है ब्रेन अपने ब्रोका एरिया में या वर्निकी एरिया में, किस तरह से उसको यानी रीडर जो है, राइटर जो है, स्पीकर जो है वो क्या करता है, उसको इनकोड करता है। ठीक है, वो बोलता है, इनकोड करता है, और वो आगे से क्या करता है, लिसनर उसको डीकोड करता है। यानी एक स्पीकर से एक लिसनर तक बात पहुंचती है, वो उसको इनकोड करता है, वो आगे से उसको डीकोड करता है, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर वो आगे से बोलता है। ये सारा प्रोसेस जो दोनों के ब्रेन में हो रहा है और उसके साथ लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है, ये आपका साइकोलिंग्विस्टिक है। दे स्टडी हाउ कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड सेंटेंस आर कंपोज इन स्पीच एंड हाउ दे आर ब्रोकन डाउन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ड्यूरिंग द लिसनिंग एंड रीडिंग। In short, psycholinguistics seek to understand how language is done, कि लैंग्वेज कैसे अपना जो लैंग्वेज कन्वे करने का, मीनिंग कन्वे करने का प्रोसेस कैसे अंजाम देती है। अच्छा, 3 मेन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो एक साइकोलिंग्विस्टिक जो है उसकी स्टडी में आती हैं। एक है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस, यानी ये 3 मेन ब्रांचेस जो हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, एक है यहाँ पे स्पीकर हमारे पास और एक है लिसनर। और ये लेट सपोज ये ब्रेन है उसका, जब वो बोल रहा है तो ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक है उसका राइट और एक क्या है, लेफ्ट। अब लेफ्ट जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये क्या है, रिसेप्शन से रिलेटेड है। ये जो है स्पीकिंग से रिलेटेड है और ये क्या, रिसेप्शन से रिलेटेड है, रिसीव करता है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी इधर का हिस्सा जो है इसके ऊपर, ये हिस्सा इसके ऊपर। तो ये एक स्पीकर जब ये बोलता है तो डेफिनेटली वो ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, यानी वो मैसेज निकालता है और वो उसको डिकोड करता है। इधर स्पीकर है, इधर लिसनर है। तो लिसनर जो है स्पीकर बोलता है उसको इनकोड करता है जो भी उसके पास है, और यहाँ इसको लेता है, इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है और ब्रेन के अंदर फिर प्रोसेस होता है। यानी वो राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दोनों प्रोसेस जो है अंदर दिमाग के अंदर होते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन मैंने बताया कि ये एक नेचुरल वे होता है लैंग्वेज लर्निंग का, और एक बच्चा जैसे लैंग्वेज सीखता है वो एक एक्विजिशन है, उसको एक्वायरिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले लिसनिंग होती है, पता ही है आपको, ठीक है। बच्चा फ़ौरन बोलने नहीं लगता, सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, फिर वो स्पीकिंग करता है, फिर वो स्कूल कॉलेज में दाखिला लेता है, स्कूल में तो वहाँ से उसे रीडिंग राइटिंग और फिर वो सिखाया जाता है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे रीडिंग करवाते हैं, हम उल्ट चलते हैं। हम लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो हम स्कूलों में क्या करते हैं, सबसे पहले उसे रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग शुरू करवा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर जाके कहीं लिसनिंग और स्पीकिंग। जबकि नेचुरल फिनोमिना क्या है एक लैंग्वेज सीखने का, वो क्या है, आप सारों को आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करता है और फिर उसके बाद स्पीकिंग करता है। स्पीकिंग बाद में आती है, पहले क्या होता है, पहले लिसनिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि 16 साल बच्चा पढ़ने के बावजूद क्यों नहीं बोल पाता, वो क्योंकि हमने वो प्रोसेस ही लैंग्वेज का उल्ट कर दिया है। हम पहले रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग करवाते रहते हैं
और फिर लिसनिंग कहीं वो बेचारा जाके MA लेवल पे जाके, तो इसलिए वो बोल नहीं पाता। पूरी लाइफ ही वो तकरीबन 16-20 साल भी अगर एजुकेशन सिस्टम में लगाता है हमारे, तो हमारा प्रोसेस ही इस तरह का है कि वो मेथड ही इस तरह के पुराने कि वो ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो वो एक, जैसे उसने मदर टंग सीखी है वैसे आप उसको लैंग्वेज भी टीच करो, लिसनिंग करवाओ, हियरिंग करे, और उसके बाद उसे स्पीकिंग करवाओ, फिर रीडिंग राइटिंग के टास्क भी है वो भी दें। न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर हम टोटली ब्रेन को स्टडी करते हैं, ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है और कौन कौन सी अफेजियाज हैं, कौन कौन सी हार्डशिप है, ऑब्स्ट्रक्शन है लैंग्वेज जो नहीं सीखने दे रही। इसके अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं, कुछ स्टैमरिंग करते हैं। स्टैमरिंग आपने देखा होगा, बच्चे स्टैमर करते हैं। स्टैमरिंग का मतलब होता है कि वो अटक के बोलते हैं, अटक के बोल रहे होते हैं, यानी वो थोड़ा सा मुंह से निकालते हैं इस तरह। उसमें वो भी चीज़ों को फिर स्टडी किया जाता है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर आता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक की स्टडी में स्टैमरिंग आता है, ब्लॉकिंग आता है, कैसे वो रुक जाते हैं बच्चे, कैसे कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, आपने देखा होगा। वो भी एक अफेजिया होता है, उसको क्या अफेजिया होता है। अफेजिया की स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक में। अब अफेजियास का मसला ये है कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा वो बड़ी तेज़ लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे उर्दू या पंजाबी वैसे बोल जाते हैं। वो अपनी तरफ से ठीक बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से उनके मुंह से आवाज़ निकल जाती है कि वो पता ही नहीं चलता। उनका ये जो होता है प्रॉब्लम होता है कि वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड उनका जो ब्रेन है वो काम करता है, बहुत फास्टली काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है फिर इसको स्टडी करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक इन प्रॉब्लम। होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ तक कोई पॉइंट समझ ना आया, हम इसमें देखेंगे, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा लैंग्वेज प्रोसेस कि कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस होता है लैंग्वेज सीखने का, लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, और न्यूरो लिंग्विस्टिक। ये तीन जो है ये साइको लिंग्विस्टिक के एरियाज़ हैं हमने जो देखने हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये चार लोग जो हैं ये बड़े मशहूर हैं, प्रोमिनेंट हैं इसमें। ये सैपियर-वॉफ है, हाइपोथेसिस है उसकी। स्टेट दैट द हाउ वी लुक द वर्ल्ड इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय आवर थॉट प्रोसेस। वो कहता है कि सैपियर-वॉफ हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि दैट हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय डिटर्मिनिज्म, इस तरह की इसकी थ्योरी है। वो कहता है कि हाउ वी लुक एट स्टेट दैट सैपियर-वॉफ कहता है कि हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय आवर थॉट प्रोसेस। आवर लैंग्वेज लिमिट्स आवर थॉट प्रोसेस। इट फॉलोज दैट आवर लैंग्वेज शेप्स आवर रियलिटी। देखिए, मेरी रियलिटी जो है वो मेरी लैंग्वेज, जहाँ से मैंने लैंग्वेज सीखी है ना, जो जैसी मेरी लैंग्वेज है मैंने उससे फॉर्म की है। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। आपके जो अंकल हैं, इंग्लिश में कहते हैं अंकल, क्या कहते हैं, अंकल। अब अंकल के लिए कितने नाम इस्तेमाल होते हैं, ताया, ठीक है, और चचा, फिर उसके बाद क्या होता है, मामू। अब इस तरह से बहुत सारे जो रिश्ते हैं उनको सिर्फ इंग्लिश के लिए उसके लिए क्या नाम है, अंकल से। जबकि ये ताया जो है हमारी लैंग्वेज में डिफरेंट है, चचा डिफरेंट है, मामू डिफरेंट है, वहाँ पे एक ही चीज़ है। तो हमारी बहुत सारी बातें जो है वो हमारी लैंग्वेज जो है वो डिटरमिन करती है, लैंग्वेज ही हमें सिखा रही होती है। अब उनके नज़दीक चाहे वो ताया हो, अंकल हो, चचा हो, मामू हो, अब जो भी रिश्ता है इस तरह का वो सबको एक अंकल कह देंगे। तो लैंग्वेज इंग्लिश के पास एक वर्ड है अंकल सिर्फ। तो ये जो है ये बड़ी अब सटल लैंग्वेज है हमारी, बड़ी ब्रीक बीनी से चीज़ें उर्दू जो है वो देखती है, या पंजाबी लैंग्वेज जो है। जबकि इसमें अंकल के लिए जस्ट अंकल, चचा के लिए या मामू के लिए या इस तरह एक ही वर्ड है उनके पास। तो वो कहता है कि हमारी रियलिटी जो है वो लैंग्वेज फॉर्म कर देती है। जो हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वही हमारी, अगर मैं इंग्लिश में कहीं पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए जो उनका कल्चर है वो मेरे ऊपर, मैं ना भी चाहूँ, और बहुत ज़्यादा हैवी होगा मेरी थॉट के।
बिकॉज आई एम लिविंग एंड स्पीकिंग एंड लिविंग विद कल्चर एंड लैंग्वेज। तो वो कहता है कि स्टेट दैट, उसकी हाइपोथेसिस क्या कहती है, हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड इज लार्जली, जो हम दुनिया को देखते हैं तो वो किसके थ्रू देख रहे होते हैं, डिटरमिन्ड बाय द थॉट प्रोसेस एंड आवर लैंग्वेज लिमिट्स आवर थॉट प्रोसेस। और हमारी लैंग्वेज को हमारी थॉट को कौन कंट्रोल करता है, हमारी लैंग्वेज जो है वो उसको वेलकम बैक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी, सैपियर-वॉल्फ ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू सैपियर-वॉल्फ हमारी लैंग्वेज जो है वो डिटरमिन करती है हम जो कुछ भी हैं, हमारी रियलिटी हमारी थॉट फॉर्म करती है। हमारी थॉट को कंट्रोल क्या करती है, वो कहता है जी अल्टीमेटली थॉट जो है वो हमारी रियलिटी बनाती है और वो हमें सोसाइटी देती है, ठीक है, वहाँ से हमें एक थॉट मिलती है, पेरेंट्स देते हैं, स्कूल ऑफ थॉट देते हैं। अब इस थॉट को अल्टीमेटली लैंग्वेज कंट्रोल करती है, वो कहता है। तो किसी हद तक ऐसा भी है, अगर आप गौर से देखें तो जो चीज़ आपको लैंग्वेज में मिलती है वो आपको क्या, आपकी थॉट बनाती है। जो कुछ आपके कल्चर लैंग्वेज के अंदर होता है वो अल्टीमेटली आपकी थॉट को फॉर्म करता है। कहते हैं फॉलो दैट आवर लैंग्वेज शेप्स आवर रियलिटी। हमारी लैंग्वेज जो है वो शेप करती है हमारी रियलिटी को। और रियलिटी क्या है, मेरे नज़दीक गुड बैड क्या है, आपके नज़दीक गुड बैड पता नहीं क्या है। एक वेस्टर्न पर्सन, एक स्पेनिश या कहीं वो अमेरिका के किसी लास्ट स्टेट में बैठा, फिलाडेल्फिया में बैठा हुआ या वर्जीनिया में बैठा हुआ कोई शख्स जो है, उसकी रियलिटी उसने फॉर्म की है, उसकी लैंग्वेज ने, उसकी सराउंडिंग ने, उसके कल्चर ने। वो कहते हैं इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज दैट वी यूज शेप द वे वी थिंक। अब ये लाइन बड़ी उसकी नोट करने, कहता है मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूँगा कि लैंग्वेज दैट वी यूज, जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, शेप्स आर वे वी थिंक एंड सी द वर्ल्ड। कि लैंग्वेज शेप करती है, बनाती है क्या, जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम फील करते हैं वो हमारी रियलिटी वर्ड के मतलब बनाती है हमारी लैंग्वेज।
तो उसने अल्टीमेटली कहा कि जो लैंग्वेज आप बोलते हैं वो लैंग्वेज बहुत हद तक आपकी रियलिटी और आपको वर्ल्ड दुनिया को कैसे देखते हो ये भी वो डिटरमिन करती है। पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। मैं पंजाबी बोलता हूँ, पंजाबी तक ही लिमिटेड हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि एक स्पेनिश स्पीकर क्या होता है, मैंने देखा ही नहीं चाइनीज स्पीकर क्या होता है, मैंने देखा ही नहीं एक पोर्तुगीज स्पीकर क्या है, मैंने देखा ही नहीं इंग्लिश स्पीकर क्या है, मैंने देखा ही नहीं फ्रेंच और जर्मन, और मेरे आइडियाज भी लिमिटेड होंगे। क्यों लिमिटेड होंगे भाई? मेरा व्यू लिमिटेड होगा, मैं उस लेवल पे कभी सोच ही नहीं सकता जहाँ पे एक मल्टीलिंगुअल पर्सन सोचता है जाकर। तो दैट इज क्वाइट राइट। क्यों ऐसा ही है? This hypothesis can be separated into two components. A theory of linguistic determinism. इसमें एक theory फिर क्या आती है? A theory of linguistic determinism that state that the language you speak determine the way that you will interpret the world around you. आप जो लैंग्वेज बोलते हो, जितनी उसके अंदर डेवलपमेंट है, जो उसके अंदर है, वो सारा कुछ आपके पास होगा। ठीक है, आप वो लैंग्वेज बोलते हो, आप वो पढ़ते हो। जैसे कि उर्दू में जो चीज़ें हैं मैंने तकरीबन वो पढ़ी हैं, क्योंकि वो मेरी नेशनल लैंग्वेज है और मैं उसे समझता हूँ, बोलता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर है मुझे पता है। सो दैट इज डन बाय द यूज ऑफ द लेक्सिकल फीचर्स, वर्बल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्रामर्स एंड द सेमेंटिक distinctions. A weaker theory of linguistic relativisms that state that the language merely influence your thoughts about the real words. कि लैंग्वेज जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है, जो रियल वर्ल्ड है आपके सामने है उसी को ही आपको इन्फ्लुएंस करती है। यानी ये थ्योरी जो डिटर्मिनिज्म की है ये इससे ज़्यादा मजबूत है। वो कहता है कि ये जो हाइपोथेसिस है, example of the Sapir-Whorf hypothesis. So the Hopi language is seen to contains no words grammatical for। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि जैसे एक होपी लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल फॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन, उसमें कहता है कि कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं कि उसमें एक वर्ड के 20-20, 40-40 मीनिंग है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि अंकल जो है, अंकल इंग्लिश में ताया हो, चचा हो, मामा हो, उसके लिए एक ही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? अंकल। अब हो सकता है किसी और लैंग्वेज में यही जो अंकल है इसको हम 10, 12, 14, 15 तरीके से उसको हम बोल सकें। तो कुछ लैंग्वेज होती हैं वो इस लेवल से कहता है लिमिटेड होती हैं। सो होपी लैंग्वेज इज सीन कंटेन वर्ड्स, ग्रामेटिकल फॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशंस दैट रेफर डायरेक्टली टू व्हाट वी कॉल टाइम्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स। अब देखिए कुछ लैंग्वेज में पास्ट, प्रेजेंट और इस तरह का कंसेप्ट ही नहीं है। अफ्रीकन लैंग्वेज कुछ ऐसी हैं कि आप मगरब की तरफ मुंह करें तो उनका एक ख़ास मकसद होता है, मशरब की तरफ मुंह करें तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। वो जस्ट अपने मुंह से ही, डायरेक्शन से ही आपको बताते हैं कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलते। तो बाज़ ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बाज़ ऐसी जिसमें वर्ब नहीं होता, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज, लेकिन वो फिर भी लैंग्वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग 3 days, होपी पीपल वुड से ऑन द 3rd days। वो सीधा यानी 3, 1, 2, 3, उसमें उनको काउंटिंग नहीं आती। जिनमें जो प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज, चूंकि उन्होंने खुद शुरू से उस पर वर्क नहीं किया, तो वो काउंटिंग को इस तरह सटली, जैसे हम ब्रीक बीनी से काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इवन के हिसाब किताब कर लेते हैं, वो सीधा 3rd day ही कहते हैं, 3 days नहीं कह सकते। सो आगे वो कहता है नवाहू लैंग्वेज ऑफ द Arizona is rich in word for the talking about the line of the various shapes and the colors. अब कुछ लैंग्वेज जैसे रशियन लैंग्वेज है, इसमें कलर जो है, हर कलर का एक डिफरेंट नाम है। ठीक है, हमारे तो बहुत सारे इंग्लिश में भी कलर जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन अगर आप रशियन लैंग्वेज में देखें, कोशिश कीजिएगा रशिया में कलर को फाइंड करने की, नेट पे सर्च करें तो उसमें हर कलर को एक ख़ास नाम दिया गया है। बड़ा ब्रीक बीनी से कलर जो है उनके नाम है उसके, तो जबकि दूसरे लैंग्वेज में नहीं है ऐसा। अमंग द हंड्रेड्स आर द वर्ड अवेलेबल फॉर द पर्पस आर एडिस सिगल्स। तो अ ग्रुप ऑफ द
parallels with lines running off into the distance. तो एक वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा नाम है. कुछ लैंग्वेज उसने एरिज़ोना बताई है, लैंग्वेज ऑफ एरिज़ोना जो है उसमें उसने बताया कि एक ही वर्ड के बहुत ज़्यादा नेम है, जबकि दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है. द लार्ज वोकैबुलरी अलाउ नवाहु स्पीकर्स to speak easily about all kind of the geometrical arrangements which word requires lengthy descriptions in English. तो उसके लिए उनके लिए हर चीज़ की बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है उनकी लैंग्वेज में. In French, Spanish and Russian there are two ways to address a person because those languages have two second person pronouns, singular and plurals. The choice of the pronoun depend on the relationship between the two peoples, formal and informal, the degree of familiarity between them. In this respect, the speaker of any of these language is always thinking about the relationship when addressing another person, therefore unable to separate those two processes. अब रशियन, स्पेनिश और फ्रेंच में यानी दो वे से आप पर्सन को एड्रेस कर सकते हैं. हर चीज़ के उनके सिंगुलर और प्लूरल जो है वो मौजूद है. Another examples in the conception of the number in the Brazilians, Piraha peoples, these individual could not conceive number beyond ones and two, for which there are no actual terms in their language. अब Piraha लैंग्वेज जो ब्राज़ीलियन लैंग्वेज है उसका उसने उसकी लिमिटेशन बताई है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो दो से ज़्यादा गिन ही नहीं सकते. पिराहा के अंदर क्या कहता है कि इंडिविजुअल हु कुड नॉट कंसीव नंबर बियॉन्ड 1 और 2. अब इससे आगे आप बोलेंगे तो उनको काउंटिंग भी नहीं आएगी. फॉर विच देयर इज नो एक्चुअल टर्म्स इन देयर लैंग्वेज. आफ्टर दिस ऑल नंबर्स आर ग्रुप्ड अंडर द टर्म मैनी. अब सारे जो इसके बाद 1 2 3 4 5 उनको क्या कह देते हैं, वो मैनी कह देते हैं. आप उनको सिखाने की भी कोशिश करें वो तब भी नहीं जल्दी सीखेंगे. तो ये लिमिटेशन होती है लैंग्वेज की. Even after being taught the Portuguese language for 8 months, कहता है 8 month भी उनको पोर्तुगीज लैंग्वेज सिखाई गई. नॉट वन इंडिविजुअल कुड काउंट 10, तो उनमें से एक बंदा भी नहीं 10 तक गिन सका. हम देखें कितना कुछ गिन लेते हैं. हमारे अंदर तो बड़ा, हमारी लैंग्वेज के अंदर बड़ी सटल चीज़ें हैं ये. लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग? लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि एक स्पीकर है और एक लिसनर है. यहाँ से बात लिसनर से स्पीकर से जा रही है लिसनर तक, और लिसनर से स्पीकर फिर वो उसको वापस भी देता है जो वो बोलता है. तो इनके दरमियान जो सारा प्रोसेस हो रहा है लैंग्वेज प्रोसेस का, वो सारा हम स्टडी करेंगे. इट रेफर्स टू हाउ ह्यूमन बीइंग क्रिएट यूज वर्ड टू कम्युनिकेट फीलिंग आइडिया एंड हाउ दीज कम्युनिकेशन आर कॉम्प्रीहेंडेड. कि यहाँ से बात यहाँ से जाएगी स्पीकर से लिसनर तक, लिसनर से स्पीकर तक, और ये अल्टीमेट मकसद तो अपनी बात समझाना ही होता है ना. तो ये कॉम्प्रीहेंशन कैसे होती है, रिसेप्शन कैसे होती है, परसेप्शन कैसे होती है, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज प्रोसेस के अंदर देखते हैं. इट आल्सो रेफर टू हाउ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड एंड व्हाट अदर पीपल से एंड राइट टू देम सच एज फ्रॉम टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड्स. हम चीज़ों को कहाँ से समझते हैं कि खबरें चल रही हैं, टेलीविज़न से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है. हम कहाँ से देख रहे हैं? नेट से देख रहे हैं, ठीक है. बिलबोर्ड से देख रहे हैं. हम कहाँ से देख रहे हैं? हम रेडियो से देख रहे हैं, सुन रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है. प्रोसेसिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ कैपेसिटी, स्किल, प्रोसेसेस, नॉलेज एंड डिस्पोजिशन दैट आर यूज टू डिड्यूस मीनिंग. डिड्यूस का मतलब क्या होता है? निकालना, अखज़ करना. डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द स्पोकन, रिटन एंड साइंड लैंग्वेज. ये सारा प्रोसेस हम लैंग्वेज प्रोसेस के अंदर देखते हैं. Language processing. Language processing is a complex procedure that takes place easily and effortlessly by human. It develops along with the brains and able to enhance with the use of gestures. However, it is unknown exactly how early it is fully developed in children. Gestures certainly useful for the understanding the language around it. Speech descriptions. हाँ जी. Speech perceptions.
The sound of the language are heard, interpreted and understood through the process of the speech perceptions. Listener recognize speech sounds and use them to understand spoken language. Speech perception include combinings of only the phonology and phonetics. अब जो हम बोलते हैं स्पीच परसेप्शन जो है वो किसके थ्रू होती है? कॉम्बाइनिंग नॉट ओनली द फोनोलॉजी, हम फोनोलॉजी ही नहीं बल्कि एंड फोनोलॉजी phonetics of the speech to be perceived, but also the syntax of the language and the semantic of the language. यानी उसके अंदर phonology भी आता है। जब हम किसी लैंग्वेज को परसीव करते हैं तो हमें फोनोलॉजी भी उसकी आती होती है, ठीक है। जैसे उर्दू है, पंजाबी है या इंग्लिश है, उसके साथ हमें उसका क्या आता है? सिंटैक्स का भी पता होता है। इसका सिंटैक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमें ये भी पता होता है कि इसका सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ आई ईट वाटर, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन इसकी सिमेंटिक सेंस ठीक नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में होती है जब हम परसीव कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। वर्ड आर ओकेजनली सेपरेटेड फ्राम नेबरिंग वर्ड्स ऑफ द फ्राजेज। ग्रेट ऐप और ग्रेट टेप्स, आइसक्रीम और आइसक्रीम, इन का डिफरेंस आप जानती हैं ना? आपको पता है कि आइसक्रीम कोई बोल रहा है या आइसक्रीम कोई बोल रहा है, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। स्पीच परसेप्शन abilities are in evidence from the first day with the babies responding to the different type of sound in a predictable way, such as being able to distinguish between their mothers and other voices before they are days old. They are able to tell the difference between the several pair of the consonants and vowels by about a month, as will some contrast in intonations and rhythm. अब देखिए बच्चा कहाँ से परसेप्शन शुरू करता है? सबसे पहले बच्चे को जैसे ही माँ बोले उसकी उसे पता चल जाता है ये मेरी माँ है। चाहे वो आप 20 औरतें भी बोल रही हो ना, तो बच्चा छोटा हो तो परसेप्शन उसकी उस वक्त बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। क्या उसकी माँ को जैसे ही वो देख लेता है तो उसको देख के मुस्कुराता है, उसकी तरफ हाथ करता है, उसकी तरफ वो परसेप्शन होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड करता जाता है और फिर अल्टीमेटली वो फिर इन सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वावल की पहचान करता है, ठीक है, उस साउंड की, एज वेल एज कंट्रास्ट को जानता है, इंटोनेशन को जानता है, रिदम को जानता है। कोई गुस्से से बात करे तो मुंह बना लेता है। तो इस तरह ही इज़ डेवलपिंग ग्रेजुअली। साइंस ऑफ द कॉम्प्रीहेंशंस मर्ज बिटवीन 2 and 4 month, 2 और 4 month में आता है। When baby begins to respond to adult tones of voices, such as the difference between the angry, soothing, कोई सूथ कर रहा हो तो पता चल जाता है, अगर गुस्से से बोले तो मुंह बना लेता है, and playful voices between 6 and 9 month। अब 9 माह का या साल का हो जाता है बच्चा जब, तो फिर वो क्या करता है? द चाइल्ड लर्न टू रिकग्नाइज द डिफरेंट अटरेंसेस इन द सिचुएशन, क्लैप हैंड एंड से बाय बाय, इस तरह की चीज़ें वो बहुत सारी बच्चे करते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा, इसको आपने अपनी तरफ से 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। Speech environment. Speech often occurs in a noisy environment, which create difficulty in processing. We must ignore large component of the sounds that reaches our ears: TV blaring, children screaming, traffic nearby, and the processing speech, while at the same time not necessarily ignoring them entirely. अब हम जब इन्वायरमेंट में किसी में होते हैं तो हमने अगर ख़ास बात को सुनना है तो बहुत सारी आवाज़ें हमें इग्नोर भी करनी पड़ती। मिसाल के तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पीछे मेरा शोर हो रहा है, लेकिन मेरा फोकस ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने कोई और बच्चे भी बोल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में भी नॉइज़ होगा, तो सारा नॉइज़ी इन्वायरमेंट से आप मेरी आवाज़ को पिक कर रहे हैं, तो दिस इज़ इन्वायरमेंट में वो कुछ चीज़ें हमें इग्नोर भी करनी पड़ती। अच्छा जी, सारी चीज़ें छोड़ दें। कॉम्प्रीहेंशन सेंटेंस, अच्छा ये चीज़ें ज़रा देखें। कहता है जी कॉम्प्रीहेंशंस ऑफ द सेंटेंसेस। पार्सिंग का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, चंक्स में बांटना।
पार्सिंग इज द एप्लीकेशन, पार्सिंग क्या एप्लीकेशन है? पार्सिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ applications of grammatical structure to the sentences. It is the breaking down the text into the, मैंने जैसे बताया ना, पार्सिंग का मतलब चंक्स में बांटना, चंक्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच विद एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स सिंटैक्टिक रिलेशंस। पार्सिंग स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अटरेंस, ये हमने सीखा है। यानी एक सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक होता है नाउन फ्रेज, ठीक है, एक होता है उसके अंदर वर्ब फ्रेज, एक होता है नाउन फ्रेज, फिर उसके अंदर यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है। वर्ब में क्या हो सकता है, कोई वर्ब फ्रेज हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, कोई फिर नाउन फ्रेज हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ देखिए, अगर नाउन फ्रेज को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से एक आर्टिकल निकल आ जाएगा द, और नाउन को हमने जब देखा तो नाउन से द रैट, ये जो है हमारे पास नाउन, और फिर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और उसके बाद चीज़। अब द रैट एट चीज़, चीज़ जो है ये हमारा नाउन है। तो हम इस तरह कहते हैं उसे ब्रेक डाउन, उसकी कॉम्प्रीहेंशन और पार्सिंग सेंटेंस, हम उसको ब्रेक डाउन करके भी बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपसे कहे कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द सेंटेंस गार्डन पाथ सेंटेंस। गार्डन पाथ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं, जो ग्रामेटिकली ठीक लिखे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं आते, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी एम्बिगुअस सी होती है, अंडरस्टैंडिंग एम्बिगुअस हो सकती है। इसको कहते हैं गार्डन पाथ सेंटेंस। क्या कहते हैं? गार्डन पाथ सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एम्बिगुअस होते हैं लेकिन ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, लेकिन आपको उनकी समझ नहीं, उसकी परसेप्शन इंटरप्रिटेशन जो है वो एक नहीं, एक से 4-5 बन सकती है। आर सेंटेंसेस दैट आर लेक्सिकली और ग्रामेटिकली एम्बिगुअस, ये नोट कर लें, दे आर गार्डन पाथ सेंटेंसेस आर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दे आर लेक्सिकली एंड ग्रामेटिकली दे आर एम्बिगुअस एंड दे हैव मैनी इंटरप्रिटेशंस, उसकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जैक एंड जिल वेंट टू द बैंक। अब देखें यहाँ से ये सेंटेंस वैसे ग्रामेटिकली ठीक है। अब बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो बैंक होता है कि रिवर के साथ कोई इलाका है, रिवर के साथ रिवर का बैंक है, या कोई कैनाल का बैंक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये किनारा हो सकता है रिवर का, या ये मनी वाला बैंक है जहाँ पे पैसे हम जमा करवाते हैं। अब दो इंटरप्रिटेशन इसमें निकल रही हैं, तो ये होगी गार्डन पाथ सेंटेंस। ये क्या होगा? गार्डन पाथ सेंटेंस। जैक एंड जिल वेंट टू द बैंक। अब यहाँ से बैंक से आप दो मीनिंग निकाले, बैंक दो तरह के होते हैं, ठीक है। पुट द बॉक्स ऑन द टेबल इन किचन। पुट द बॉक्स, बॉक्स को किस पे रखो? ऑन द टेबल इन किचन। अब ऑन द टेबल इन किचन, इस तरह इसके भी इंटरप्रिटेशन जो है वो रीडर को कंफ्यूज कर देती हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो रीडर को कंफ्यूज कर दें, मल्टीपल मीनिंग इंटरप्रिटेशन निकले, उसको हम कहते हैं गार्डन पाथ सेंटेंस। आ जाए तो आप इसके ऊपर लिख देना, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो ये सारे गार्डन पाथ सेंटेंस के ये आपको मैं दे दूंगा, ये आपने इसको नोट कर लेना है। द ओल्ड मैन, द बोट, complex houses, married and singles, soldiers and their families, fat peoples at accumulates, ठीक है। Cotton's clothing is usually made of the ground in the Mississippis। तो इस तरह की बहुत सारे सेंटेंस जो हैं ये आप सारे नोट कर लीजिएगा। सर एक आम सा वर्ड सेंटेंस है ना जो हम बोलते हैं, आई लव चिकन, ये भी इसी तरह का ही है ना ऑलमोस्ट। ये भी इसी तरह का, ये भी जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैरी लव्स हर बॉयफ्रेंड। अक्सर ये किताबों के ऊपर ये होती है मिसाल। अब ये भी एक गार्डन पाथ सेंटेंस ही है। क्या वो किसका? मैरी लव्स हर बॉयफ्रेंड। अब इतना जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हर बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, यानी वो किसी अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से प्यार करती है? अब यहाँ पे ये टोटली कंफ्यूज कर देगा।
तो इसको भी गार्डन पाथ, इसके लिए हमें कॉन्टेक्चुअल और सिचुएशनल और प्लेस की और कहाँ खड़े हैं ये सारी मीनिंग देखने पड़ेंगे। स्पीच प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डज नॉट कंटिन्यू बेस्ड ऑन फोन्स और वर्ड इंडिविजुअली but on complete sentence, because full sentence are created. Sometimes speech error, slip of the tongue happens. These error occurs at all level of the language. Slip of the tongues are often the result of the sound being carried over from one word to another word. और उसका ये होता है कि हम स्पीच प्रोडक्शन में कुछ बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं, कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ स्लिप कर जाते हैं, तो वो कहता है स्पीच प्रोडक्शन में ये भी साथ साथ चलते हैं। एरर्स एट द फोनोलॉजिकल लेवल्स आर spoonerisms. This involves the transposing or switching of the phonemes from identical positions, and they are usually consonant in the initial positions. He was killed by a blushing crow. Go and shake a towers. Is the bean, इसको छोड़ दें, ये काम की नहीं है। अच्छा ये articulatory productions। अच्छा ये चीज़ है, ये है ब्रेन का सिस्टम आपका, इसको देख लें। लैंग्वेज एंड द ब्रेन, ये आ सकता है, अगर आ जाए तो इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेना, लैंग्वेज एंड द ब्रेन। ये आपका ब्रेन है, और ये जो ब्रेन है इसके अंदर कितने बिलियन सेल्स हैं, उतने कहते काउंटलेस हैं, उतने स्टार नहीं हैं यूनिवर्स में जितने इसमें सेल्स हैं इंसान के दिमाग के अंदर। और इस दिमाग के अंदर एक है लेफ्ट ब्रेन और एक है राइट ब्रेन। लेफ्ट जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, राइट जो लेफ्ट को कंट्रोल करता है। एक में भी कोई मसला हो तो ये इसकी प्रोडक्शन और रिसेप्शन जो है वो खराब हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन इज अ स्फेरिकल इन शेप्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द टू हेमिस्फीयर्स। इसके दो हेमिस्फीयर हैं, ठीक है, बंडल ऑफ नर्व्स, और दीज हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय द बंडल ऑफ नर्व्स कॉल्ड द कॉर्पस कोलोसम्स। इनको कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, ये जो बंडल ऑफ नर्व्स आपके ब्रेन के अंदर है। सो दे आर सो मैनी काउंटलेस, इतने सेल्स हैं कि इंसान के दिमाग को समझना क्यों मसला है। अब यहाँ पे बैठे देखे 100 साल पहले भी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बचपन की बात कभी सुना देते हैं। क्या है ये, दिमाग की पावर है ना। लैंग्वेज एंड द ब्रेन्स। Bodily senses and controls are central literals. Each hemispheres manage the opposite side of the body. अब मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि राइट जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट एंड राइट ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। एक में भी मसला हो तो वो दूसरा भी अफेक्ट होता है। किसी ने अगर पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, तो शायद उसमें ये कंसेप्ट होते हैं डिस्कस। अच्छा जी, ब्रेन के अंदर ये आप अगर देखें, इसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है, ये जो उसके ऊपर है ना, ये सारा सिस्टम ब्रेन के अंदर ही होता है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। द आउटर लेयर्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये लेयर्स जो हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। The cerebral cortex is made up of the several billion neurons, और इस पे several billion neurons हैं। बिलियन बहुत ज़्यादा होती है अमाउंट, तो ये सारे जो हैं बिलियन neurons जो हैं इसके ऊपर हैं, इसीलिए कहते हैं ना न्यूरोलिंग्विस्टिक। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक में ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्टडी करते हैं। The cerebral cortex is divided into the 4 main lobes. अब कॉर्टेक्स जो है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मसल्स यानी आगे 4 मेन लॉब्स होती हैं। द फ्रंटल लॉब, ये जो हमारे दिमाग का वो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल लॉब्स। फ्रंटल लॉब्स मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, आपको फिर याद रहेगा। आपके दिमाग का जो माथे वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल लॉब, ठीक है। और इसके साथ फिर है पैरेटल लॉब्स। पैरेटल लॉब्स कहाँ पे होता है, ये जो पीछे है, ठीक है।
और उसके अलावा आपके पास होता है टेम्पोरल लॉब्स। टेम्पोरल लॉब्स होता है साइडों में, ये जो साइडों वाले हिस्से हैं इसको कहते हैं टेम्पोरल लॉब्स। और फिर ऑक्सीपिटल लॉब्स, ये पीछे होता है, ये पीछे जो हमारे दिमाग के पीछे इस हिस्से को क्या कहते हैं? ये रजिस्टर्ड लैंग्वेज है ना बायो की। हाँ, ये उसके रजिस्टर है, देखें समझ नहीं आपको आ रही होगी, लेकिन आप ये देखें, ये तस्वीर देख लें, अपने दिमाग को आप देखें तो ये रेड हिस्सा जो है आपका फ्रंट है, ठीक है। ये पैरेटल्स जो है उसके पीछे वाला है हमारा, तो उसके नीचे जो हमारे गर्दन के पास जो होता है एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल लॉब, ठीक है। और ये जो टेम्पोरल लॉब, ये साइडें नहीं होती, कहते मेरे साइडों में दर्द हो रही है, कुछ फीमेल और कह रही होती हैं कि हमारे साइडों में दर्द हो रही है, वो जो आपका है वो टेम्पोरल लॉब होता है, वो हिस्सा। तो दिमाग के मजीद यानी सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हाँ यस, वही। तो वो आपका क्या है? वो आपको उसको टेम्पोरल लॉब कहते हैं। टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब जो पीछे है, और फिर नीचे जो, अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो पीछे गर्दन के ऐसे ऊपर थोड़ा सा होता है पिछले वाला हिस्सा, उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। तो ये 4 हिस्से हैं दिमाग के, और जिनके दर्द करता है दिमाग उनको तो बड़ी समझ आ रही होगी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा जी, ब्रेन स्टेम्स रेगुलेट द हार्ट रेट्स। अब ये इसके फंक्शन होते हैं। देखें, दिमाग जो है, अगर कोई बंदा पागल हो ना तो वो जल्दी मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है जल्दी? क्योंकि वो पागल हो जाते हैं बेचारे। तो ये पूरा दिमाग जो है, इसके अंदर बिलियन सेल्स हैं। जो बंदे बीमार होते हैं, ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं होते, मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और दिमाग, अक्सर हमें कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं यार हेलमेट पहना करो, दिमाग का इलाज भी नहीं है। पाकिस्तान में तो जो माइंड या दिमाग में जो चोट आए उसका इलाज ही नहीं है भाई। इसका इलाज एक तो महंगा बहुत है, एक पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है इसका। तो अब देखें, अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बिलियन सेल हैं, यहाँ पे बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं, और वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ गुजार दें तो उसके दिमाग का पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोचता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, माइंड की स्टडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। रेगुलेट द हार्ट रेट, ब्रीथिंग्स एंड द ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, स्वेलिंग्स, डिजेशन, ये सारी चीज़ें जो ब्रेन कंट्रोल करता है। मज़ीद लोकलाइजेशन और ये चीज़ें, एक मिसाल दी गई है कि एक बंदा था, उसके आँख में चोट लग गई और वो कोई वर्क कर रहा था, तो वो एक्सप्लोजन होता है, तो वो उसके ना दिमाग से ऐसे उसके जबड़े से निकलती है वो छड़ी पकड़ी होती है, तो छड़ी वो लगाता है बारूद में, तो वो वहाँ से फटता है और सीधा उसके जबड़े से निकल के उसके दिमाग से निकल जाती है। तो वो काफ़ी देर जिंदा रहता है, तो चीज़ों को फिर इशारों से बताता रहता है। उसका स्टडी किया। ये देखें, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, वर्ण की ब्रोका एरिया, और हेल्प्स टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट स्पीच, किसमें मदद करता है? ये इतना सा एरिया है दिमाग के अंदर, इसको डिस्कवर किया था एक पॉल ब्रोका नामी, पॉल ब्रोका फ्रेंच ये था फिजियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट था। तो इसने क्या किया, इसने एक ना एरिया दिमाग का दरियाफ्त किया, उसका नाम ही रख दिया गया ब्रोका एरिया। एक जर्मन एक फिजियोलॉजिस्ट था, उसने डिस्कवर किया दूसरा दिमाग का एरिया, ये इससे ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, ये वाला, इसको नाम, दिमाग के इस एरिया को नाम रख दिया उन्होंने वर्निकी अफेजिया। अगर आप दिमाग की स्टडी में या ब्रेन की स्टडी में इंटरेस्टेड हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर, तो आप इसमें वर्क कर सकते हैं। मैंने इसमें वर्क किया हुआ, मुझे बड़ा शौक था। हेल्प इन स्पीच प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी ये परसेप्शन से रिलेटेड है। मैं इसको ऐसे बच्चों को समझाता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि ये दिमाग का वो एरिया जो परसेप्शन में मदद देता है, समझने में, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग से रिलेटेड। यानी ब्रोका एरिया जो है वो स्पीकिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और ये किससे रिलेटेड है? परसेप्शन से रिलेटेड। अब ये सारा कुछ दिमाग के अंदर हो रहा है, आपको पता नहीं है, आपके अंदर ब्रोका एरिया भी काम कर रहा है और वर्निकी एरिया भी काम कर रहा है, बट यू डोंट नो। Broca and the Wernicke's areas are connected by the bundle of the neurons called the arcuates fasciculus
फेसिकुलस जो हैं इसके साथ, इनको कहा जाता है न्यूरॉन्स जो हैं इसके साथ ये देखें जुड़े हुए हैं और ये काम करते हैं। ब्रोका एरिया, वर्निकी एरिया ये देखें दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। आगे फिर अफेजिया होता है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आप इसको ना पढ़ना। अफेजिया होता है कि जो प्रॉब्लम्स इम्पेयरमेंट होती है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में, बोलने में। यानी हो मैं सारी असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा, इसे देख लीजिएगा। मैं आपके साथ एक और असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ, उसको ज़रा देखें। लेट मी शेयर। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये है, ये भी इसी से टॉपिक से रिलेटेड है। मैं कहता हूँ कि आज ये भी ख़त्म हो जाए। अगर थीरीज़ की बात की जाए तो 3 मेन थीरीज़ जो हैं बड़ी प्रोमिनेंट हैं। एक बिहेवियरिस्ट थीरी और एक है इनेट थीरी। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है, जो उसके सामने होता है वो वैसे ही प्ले करता है। यानी आपके सामने एक बिहेवियर मैं करता हूँ तो बच्चा उसी बिहेवियर को कहता है फॉर्म कर लेगा। अगर आप उसके सामने कोई बिहेवियर ना करें तो वो काम नहीं करेगा। या फिर उसने कहा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दें या नेगेटिव। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसे आप कहें कि आपने ये काम करना है, आपने इतना पढ़ना है, आपको एक टॉफ़ी मिलेगी। तो वो कहता है कि अगर आप उसे एक रीइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव यानी टॉफ़ी देते हैं, वो टॉफ़ी की लालच में वो पढ़ेगा, ज़्यादा वर्क करेगा। फिर कहता है कि अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे देते हो किसी बच्चे को या किसी भी लर्नर को या किसी वर्क को, तो वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक कहता है जी बॉस है, अब बॉस के पास मैं सुबह मॉर्निंग टाइम जाता हूँ, तो वो कहता है कि वो बॉस जो है वो बड़ा गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, चाय भी नहीं पिलाता, डांट देता है। लेकिन 12 बजे जाता हूँ तो वो चाय भी देता है और बैठा भी लेता है, बात भी करता है। तो जब भी मॉर्निंग टाइम जाता हूँ तो वो डांटता है। तो वो बिहेवियर जो यानी बॉस के पास जाने वाला मॉर्निंग टाइम वाला वो मैं छोड़ दूंगा, तो जहाँ पे मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है वो मैं रिपीट करता रहूँगा। यानी हर चीज़ जो है वो फिर कहता है रीइंफोर्समेंट से रिपीट होती है। अगर एक बच्चे को आप मारेंगे, वो कोई गलत काम करता है, तो वो दोबारा बिहेवियर भी रिपीट नहीं करता। तो उसमें कहता है जी पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दिया जा सकता है। तो बिहेवियर थ्योरी जो थी ये B.F. स्किनर ने पेश की थी। क्या नाम था उसका? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने कहा कि बच्चे के सामने, बच्चा लैंग्वेज सीखता है जो बिहेवियर उसके सामने होते रहते हैं वो वैसा करता है। अगर बिहेवियर नहीं होगा तो बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखेगा। अब बिहेवियर मतलब उसने कहा, इस थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने यह कहा कि अगर बिहेवियर से ही लैंग्वेज आती होती तो जानवरों के सामने तो हम बहुत सारे बिहेवियर करते हैं, वो लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते? उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर बच्चे के दिमाग के अंदर एक लेड लगी हुई है, नेचुरल इंट्यूटिव उसके अंदर मौजूद है। यानी ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया उसने दिया था, कोई साइंटिफिकली उसने प्रूव नहीं किया था। उसने कहा कि ये काम तो जानवरों के सामने भी हम करते हैं, तो वो बिहेवियर से लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते? अगर सिर्फ बिहेवियर का नाम ही लैंग्वेज है कि बिहेवियर से लैंग्वेज आती है, तो जानवरों के सामने तो हम इतने बिहेवियर करते हैं, वो तो नहीं बोलता फिर भी। तो ये कहता है कि बोलने की जो कैपेसिटी है ये नेट है, कुदरती है। आप लेड जो है वो खुद ब खुद फंक्शन शुरू कर देती है और वो बच्चा जो है वो अब खुद ब खुद लर्निंग शुरू कर देता है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ख़ास कोई बिहेवियर से ही सीखेगा, बल्कि लेड जो है ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो वी डोंट नीड बिहेवियर इन अ वे टू लर्न लैंग्वेज, वी नीड लेड। लेड इज अ नेट वन। उसने कहा ये नेट है और उसने यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट दे दिया, यूजी का कंसेप्ट दे दिया। किसने? नोम चॉम्स्की। सो लेट्स सी वन बाय वन इन सब को देखते हैं। और ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है ये पियाजेट के अपने ही बच्चे थे, कुछ 7 बच्चे थे उसके, तो उसने उसके ऊपर ही रिसर्च की और उसमें से कुछ स्टेजेस जो हैं वो फॉर्म की कि एक बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है। मैंने जैसे एक दिन बताया था, उसने कहा कि एक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ऑपरेशनल स्टेज होती है, साइको सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है।
तो इस तरह फिर उसने 4 स्टेजेस जो हैं वो कुछ बताई हमें। तो उस स्टेजेस में उसने अपने ही बच्चों के ऊपर उसने रिसर्च की कि पहले बच्चा जो है वो कैसे स्कीमा बिल्टअप करता है, ठीक है, उस स्कीमा से फिर आगे कैसे लेके चलता है एसोसिएशन के साथ एक चीज़ को। जैसे उसके पास बाल है तो वो बाल को मुंह में डाल लेता है बच्चा पहले, ठीक है, जो भी वो बाल देखता है वो क्या करता है बच्चा उसको मुंह में, वो कहता है खाने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे गिरती है तो वो ऊपर देखता है कि वो उबर रही है, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि उसे बार बार फिर फेंकने की कोशिश करता है। बाहर थोड़ा सा जाता है और बड़ा होता है तो बाहर जाता देखता है लोग खेल रहे हैं, तो वो एक नॉलेज से दूसरा तीसरा इस तरह एसोसिएशन से नॉलेज स्कीमा बिल्टअप होता है। फिर उसने मज़ीद डिस्कस किया कि स्कीमा जो होता है वो एक बच्चे का, फार्मर के बच्चे का अलहदा होता है, एक साइंटिस्ट के, एक, ठीक है, इनहेरिटेड भी बहुत सारी स्कीमा जो है बिल्डअप हो जाता है। सो लेट्स सी some things related to this. बिहेवियरिस्ट थ्योरी का क्या, उनका क्या बिलीव था कि चिल्ड्रन इमिटेट अडल्ट, वो इमिटेट करते हैं, इमिटेट होता है कॉपी करना। देयर करेक्ट अटरेंस आर रीइंफोर्स्ड व्हेन दे गेट दे वांट और दे आर प्रेज्ड, ठीक है। स्किनर ने कहा कि वो अपने बड़ों को इमिटेट करते हैं और उनके बिहेवियर से ही सीख लेते हैं। इन्नेट क्या कहती है, नोम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी थी उसने कहा नो, लैंग्वेज इज एन इन्नेट कैपेसिटी, अ चाइल्ड ब्रेन कंटेन्स स्पेशल लैंग्वेज लर्निंग मैकेनिज्म एट बर्थ, जिसको लेड कहते हैं, वो उसके अंदर लगा होता है और वो फंक्शन करता है और वो जहाँ उसको अब ले जाते हैं वो वैसा बोलना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव कौन, किसने दी थी थ्योरी, ये थ्योरी है पियाजेट की, इसका नाम पूरा था जेन पियाजेट, इसने अपने बच्चों पे रिसर्च की थी। इज वन एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है एक बच्चे की, इसमें सारा उसने डिस्कस किया था। कॉग्निटिव द लैंग्वेज इज, ये किसने, ये विगोट्स्काय जो है ये एक रशियन था, विगोट्स्काय ने भी एक थ्योरी दी है कॉग्निटिव थ्योरी। तो लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच अलाउ द चिल्ड्रन टू अब्स्ट्रैक्ट द वर्ड, कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा वो देखता है, जो हम उसके सामने सिंबल्स शो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो देखता है, चीज़ों को लर्न करता है। बिहेवियरिज्म की टर्म्स इसमें सो वेलकम बैक। अच्छा, बिहेवियरिज्म के अंदर क्या होता है, बिहेवियरिज्म की जो की टर्म्स हैं वो कंडीशनिंग है, ठीक है। कंडीशनिंग मीन के
स्टिमुलस दिया जाता है और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस, जब हम किसी को स्टिमुलेट करते हैं तो उसका फिर रिस्पॉन्स आता है। रीइंफोर्समेंट किस लिए होता है कि ये रीइंफोर्समेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है अगर वो रोता है तो आप उसे एक टॉफ़ी दे देते हैं, ठीक, वो चुप हो जाता है, तो वो बार बार कोशिश करेगा वो रोए ताकि उसे टॉफ़ी मिले। एक बच्चा जब रोता है आप उसे एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं तो वो उसको क्या मिल रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे पॉजिटिव। अब दो तरह से आप उसको दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट, कि या उसे थप्पड़ मार दें या उसे क्या करें कि पॉजिटिव रीइंफोर्स, उसे कोई टॉफ़ी दे के चुप करवा लें। ये आपके ऊपर है। वो कहता है जी स्टिमुलस कंडीशनिंग होती है और उसमें स्टिमुलस होता है, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। अगर आप स्टिमुलेट करते हो, मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप उसे क्या कह देते हो, आप उसकी एडमायर स्टिमुलेट कर देते हो, उसे एडमायर कर देते हो थोड़ा सा, तो वो फिर दोबारा कोशिश करेगा कि अच्छा करने की। तो या आप उसे फिर रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हो उसकी। रीइंफोर्समेंट क्या करोगे, जब वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे पेन ले दें, कॉपी ले दें, तो वो फिर उसे दोबारा करेगा। वो इस तरह की कंडीशंस कुछ बताता है कि इस तरह एक बच्चा भी लैंग्वेज जो है ऐसे सीखता है, तो उस तरह वो डिस्कस करता है। इसका नाम था फ्रेडरिक स्किनर। 1904 August 1990, an American psychologist proposed operant conditioning as compared to the classical conditioning of Pavlov's. According to the Skinner, learning a language operates on the same principle that rat will use to learn a maze or to learn a press a button. अब उसने एक ना चूहे की मिसाल दी थी। उसने कहा कि एक जैसे चूहा जो है वो लर्न करता है, कैसे वो रीइंफोर्समेंट मिलती है इसी तरह बच्चे को मिलती है तो वो काम करता है। मिसाल के तौर पर उसने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर चूहे को बंद कर दिया, रैट को, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक यहाँ पे बटन लगा दिया कहीं, ठीक है। अब चूहे को भूख लगती है तो यहाँ पे लॉफ ऑफ ब्रेड्स जो है ऊपर लटके हुए हैं, यहाँ पे उसका बटन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड लटके हुए हैं, यहाँ पे चूहा है अंदर। अब भूख लगी है उसे तो वो क्या करता है, इसको प्रेस करता है। वो जैसे ही प्रेस करता है तो ऊपर से, यानी वो दौड़ता है ऐसे, तो यहाँ पे प्रेस हो जाता है, तो ऊपर से एक लॉफ ऑफ ब्रेड गिर पड़ता है, वो खा लेता है। वो फिर ऐसे दौड़ता है, यानी जब एक खा लेता है वो ऊपर से और गिरता है। तो इसी तरह कहता है कि जो स्टिमुलस है वो एक स्टिमुलस कैसे उसे मिलता है कि जब वो ऐसे इधर उधर उछलता है। तो कहता है कि इसी तरह जब स्टिमुलस जो होता है वो हमेशा किसको लीड करता है, वो रिस्पॉन्स लाता है कि आप स्टिमुलस क्या दे रहे हो किसी बच्चे को, किसी जानवर को। वो कहता है बिल्कुल, स्टिमुलस क्या देता है, रिस्पॉन्स, ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड आता है। फिर उसने कहा कि वो रीइंफोर्समेंट होती है तीसरी चीज़, कि अगर आप दोबारा वही करवाना चाहते हो तो फिर रीइंफोर्समेंट दो। तो रीइंफोर्समेंट की उसने दो मिसालें दी कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और रीइंफोर्समेंट आगे रेपिटेशन करवाता है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने काम अच्छा किया, आपने उसे तारीफ की, ठीक है, आपने स्टिमुलेट कर दिया, बच्चे ने कोई काम किया, आपने उसे स्टिमुलेट एडमिरेशन कर दी, ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स फिर देगा आपको, ठीक है। अगर आप उससे कहते हैं कि रिपीट करवाना चाहते हैं काम, तो फिर उसे उसको रीइंफोर्समेंट दें। रीइंफोर्समेंट के उसे कप दे दें, पेन दे दें, कॉपी दे दें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर बच्चा शरारत कर रहा है तो फिर आप क्या करते हो, फिर उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हो ताकि ये काम जो है जो उसने किया वो रिपीट ना हो। तो रेपिटेशन कहता है कि किसी चीज़ की डिपेंड करती है कि आप उसको दे क्या रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो। पॉजिटिव देंगे तो फिर वो रिपीट करेगा, नेगेटिव देंगे तो वो जो बिहेवियर है वो रुक जाएगा। ये उसने कुछ इस तरह की मिसालें दी थी। नाम है B.F. स्किनर और बिहेवियरिज्म की थ्योरी इसने पेश की थी। According to Skinner, learning a language operates on a same principle that a rat used to learn maze or learn a press the button. जैसे बच्चा भी ऐसे ही करता है जैसे एक रैट करता है। यानी हो B.F. स्किनर को रिजेक्ट कर दिया था किसने, नोम चॉम्स्की ने, कि ये कोई थ्योरी कहता है ठीक नहीं है।
Behaviorism, B.F. Skinner proposed that the theory as explanation for the language acquisitions in a human. All behavior is learned and that human enter the world with no innate ability, he famously said. अब इसने क्या कहा कि बच्चा जो है कोई innate कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है, कोई लेड वगैरह नहीं है, वो खुद ही लैंग्वेज जो बिहेवियर से सीख जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो नोम चॉम्स्की जो है वो इसकी निस्बत बड़ा ठीक है, वो उसकी थ्योरी हमें अपील करती है कि नेट लगी हुई है, तो अगर नेट बच्चे के माइंड में नहीं लगा हुआ तो फिर जानवर के सामने भी तो बिहेवियर कर रहे हैं, वो लैंग्वेज बोलता क्यों नहीं? उसने इस तरह उसको रिजेक्ट किया था। गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल शेप हिम इनटू एनीथिंग, ये उसका कहना है। ये किसका कहना था? B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर यानी इसकी भी ठीक है किसी हद तक के बिहेवियर तो उसके सामने अल्टीमेटली होते हैं तो वो बोलता है। B.F. Skinner's entire system is based on the operant conditioning, learning functions of change in overt behaviors। एक होता है कवर्ट बिहेवियर, एक होता है अवर्ट बिहेवियर। अवर्ट का मतलब होता है ओपन, खुला, जो उसके सामने बिहेवियर हो रहा है, जो वो देख रहा है तो वैसा ही वो कहता है, वो करता है फिर। So the organisms in everyday activity is the process of operating on the environment। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? कहता है कि जो उसके सामने ओवर्ट बिहेवियर हो रहे होते हैं वो उनको रिपीट करता है और इसी से वो लैंग्वेज सीख जाता है। ये था B.F. स्किनर का मानना था। बिहेवियरिस्ट व्यू द प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज, ये एक स्कूल ऑफ थॉट, यानी लहदा से ये स्कूल ऑफ थॉट बन गए। मैंने आपको बताया बिहेवियरिज्म जो कि B.F. स्किनर था, चॉम्स्की व्यू अबाउट लैंग्वेज है, नेट थ्योरी उसको कहते हैं, उसको मेंटल थ्योरी भी कहते हैं, नेट थ्योरी भी आ जाए, यूजी आ जाए, नेट थ्योरी आ जाए, ठीक है, मेंटल थ्योरी आ जाए, नेचुरल थ्योरी आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये नोम चॉम्स्की की थ्योरी है, हमने उसको लिखना है। बिहेवियरिस्ट आ जाए, बिहेवियरिज्म आ जाए, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आ जाए, तो आपने फिर B.F. स्किनर को लिखना है और उसके सारा कुछ लिखा हुआ है, ये असाइनमेंट याद कर लेना। बिहेवियरिस्ट व्यू प्रोसेस लैंग्वेज एक्विजिशन बिल्डिंग प्रोसेस, और नीचे इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इमिटेशन थ्योरी भी आ जाए, ठीक है। इमिटेशन थ्योरी वो पूछ ले, बिहेवियरिज्म पूछ ले, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पूछ ले, या बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट पूछ ले, तो आपने यही लिखना है। चिल्ड्रन स्टार्ट आउट द क्लीन स्लेट एंड लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिंग्विस्टिक हैबिट प्रिंटेड ऑन दीज स्लेट। उसने कहा था कि क्लीन स्लेट होती है बच्चे की और वो जो बिहेवियर उसके ऊपर फिर लिखते जाते हैं। अब इसने कहा था सबसे पहले स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस ही रिस्पॉन्स का बायस बनता है, फिर रिस्पॉन्स का, फिर फीडबैक और फिर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये 4 प्रोसेस उसने बताए थे कि इस तरह लैंग्वेज की लर्निंग होती रहती है। Principal people's behaviors are directly observable rather than the mental system underlying these behavior. Children are born with the mind that is like a blank slate. ये किसका मानना था? ये इसका B.F. स्किनर का। Language is a verbal observable behavior. Chunking theory. Language is a learn in parts then linked together. First word, second phrase and sentences. Reinforcement will generalize the similar stimulus. So children learns language step by step, limitations, repetitions, memorization, control drillings, reinforcement। ये सीरीज जो है अक्सर स्कूलों में भी अप्लाई होती रही है। Children imitate sounds and practice what they hear. Correct structures are positively reinforced. Language acquisitions is thus a process of habit formation. Factors in language acquisition: association, reinforcement। Association के एक चीज़ के साथ दूसरी एसोसिएट करना। बच्चे ने पहले तो सीखा कि लैंग्वेज जो है बाल जो है वो खाने के लिए है, फिर वो खेलने के लिए आ गई, फिर वो बाहर खेल लो, बच्चों भी उसके साथ खेल रहे हैं, आगे बढ़ता गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नॉलेज एसोसिएशन से होता है, ठीक। रीइंफोर्समेंट 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा काम करे, ठीक है जी, अच्छा काम करे, क्या दे दो? टॉफ़ी दे दो, ठीक है, चुप हो जाएगा। रो रहा है, टॉफ़ी दे दो, पॉजिटिव रीइंफोर्स। रो रहा है, थप्पड़ रसीद कर दो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चीटिंग की है, ठीक है, चीटिंग कर रहा है, एक तो आप उसे मुंह से रोक सकते हैं या उसे कोई चीज़ दें, ऐसी लालच दें कि ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव। अगर उसे थप्पड़ मार रहे हैं या मार रहे हैं वो नेगेटिव रीइंफोर्स, तो वो कहता है नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देना चाहिए ज़्यादा। शेपिंग, रेपिटेशंस, करेक्शंस,
इमिटेशन, ये सारे प्रोसेस हैं लैंग्वेज लर्निंग के। ये बिहेवियरिज्म ये सारा कुछ है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास क्या, कौन, नोम चॉम्स्की। 1928 में पैदा हुआ है, अभी तक जिंदा है, अमेरिकन है, नाम है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने कहा नहीं भाई ये तुम गलत कहते हो, असल जो है बच्चे के माइंड के अंदर लेड लगी हुई है और लेड जो है वो खुद फंक्शन करना शुरू कर देती है और हर बच्चे के अंदर लगा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसको उसने नाम दिया इनेट थ्योरी का, नेचुरल थ्योरी का, मेंटल थ्योरी का। ठीक है, उसने कहा ये जो तुम्हारी थ्योरी है ना कि स्टिमुलस, ठीक है, रिस्पॉन्स और उसके बाद रीइंफोर्समेंट, ये चार जो प्रोसेस तुमने बताए हैं ना, और रेपिटेशन, ये कहता है रॉन्ग है, मैं इनको रद्द करता हूँ। असल में मसला ये है कि बच्चे के दिमाग के अंदर लेड लगा हुआ और लेड जो है फंक्शन करना शुरू करता है। अगर बिहेवियर से ही सीखता है तो ये बिहेवियर तो जानवरों के सामने भी होते हैं, वो लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते? तो ही रिजेक्टेड हिज थ्योरी। इनेटिज्म भी कहते हैं, ये लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरिज्म व्यू ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन लेड इन 1960 टू द अल्टरनेटिव जनरेटिव काउंट ऑफ द लैंग्वेज। मेन आर्गुमेंट, चिल्ड्रन मस्ट बी बोर्न विद द innate capacity for the language development. Main figure, Noam Chomsky, children are born with the innate propensity for the language acquisitions and this ability makes the task of the learning the first language easier than it would be otherwise be. उसके बाद लेड और यूजी उसने कंसेप्ट दिया। चॉम्स्की थियोराइज्ड, क्या किया उसने, द चिल्ड्रन वर बोर्न विद द हार्ड वायर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड इन द ब्रेन. लेड इज अ सेट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टूल्स इंट्यूटिव्स एट बर्थ इन ऑल चिल्ड्रन. ही लेटर एक्सप्लेन द आइडिया इनटू द यूनिवर्सल ग्रामर. और उसी को उसने क्या किया, यूनिवर्सल, क्योंकि हर बंदे की लैंग्वेज जो है, चाहे वो मतलब कोई यहाँ पे अफ्रीका में बैठा है या वो लैटिन है या ग्रीक है या वो स्पेनिश है या वो जोन सा भी है, वो एक यूनिवर्सल ग्रामर उसके अंदर होती है और वो उस यूनिवर्सल ग्रामर को बगैर किसी स्कूल जा के भी वो समझ लेता है. A set of innate principal adjustable parameters that are common to all the human language. The children exploit its lead make sense of the utterance heard around it and deriving from the primary linguistic data, the grammar of the language. तो ये उसने कंसेप्ट दे दिया, यूजी का कंसेप्ट लेटर उसे बढ़ा के दे दिया. तो दैट इज लेट. कहता है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड इज पोस्टुलेटेड. पोस्टुलेटेड का मतलब होता है प्रिंसिपल, असूल, organs of the brains that is supposed to functions as a congenial device for the language learning symbolic language. लें जी, ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, आपने ये देखनी है. और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने उसको खुद देखना है. वो की टर्म्स हैं, वो आपने ज़रूर एक दफ़ा उसको याद करना है. लेट मी सी, मैंने यहाँ ओपन तो की थी लेकिन यहाँ आ नहीं रही है. हाँ, यस, दिस वन इज हियर. सो लेट मी शेयर. हाँ जी, आपको कोई चीज़ नज़र आई यहाँ पे? बताइएगा मुझे. यस सर. हाँ जी, ये लिखा हुआ है, जनरेटिव ग्रामर लिखा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन. यस सर. हाँ जी, ये कुछ की टर्म्स हैं, ये आपने याद कर लेनी है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट के लिए. A formally explicit grammar which defines the set of the grammatical sentences in a language. The term has been introduced by the Chomsky in this sense and also more generally used the grammars developed by Chomsky and research community. ठीक है जी, जैसे सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस होता है, उसके अंदर नॉन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये हमने पढ़ा था. वर्ब फ्रेज के अंदर क्या होता है, एक वर्ब हो सकता है, नॉन फ्रेज हो सकता है. नॉन फ्रेज के अंदर जॉन, मैरी,
ठीक है। वर्ब के अंदर क्या हो सकता है, लाइक्स, इस तरह। तो ये जनरेटिव ग्रामर का कंसेप्ट जो है ये किसने दिया था, जॉन लाइक मैरी, मैरी लाइक्स जॉन्स, ये सारा कंसेप्ट, डीप स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और आ सकता है आपको सरफेस स्ट्रक्चर। एक डीप स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम सरफेस स्ट्रक्चर कितने डेवलप कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस आपके बोलूँगा ओपन द डोर, ठीक है, लेट द डोर बी ओपन, वाई डोंट यू ओपन द डोर, वाई डू यू ओपन द डोर, वाई डिड यू ओपन द डोर, हाउ डू यू ओपन द डोर। तो ये एक ही सेंटेंस की बेस पे मैं कितने सेंटेंस फॉर्म कर सकता हूँ। ये होता है डीप और सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर एक होता है, उसकी बुनियाद पे हम डीप स्ट्रक्चर एक होता है, डीप स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सरफेस स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, सरफेस। आगे लैंग्वेज एक्विजिशन, द प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट लर्निंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज आर द लैंग्वेज एज अ होल। द टर्म इज यूज्ड एज अ रेफरेंस बोथ द लर्निंग ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज बाय द चिल्ड्रन। मार्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ द ग्रामर दैट स्टडी हाउ वर्ड्स आर फाउंड। हमने पढ़ा था ना मार्फोलॉजी को, कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स देखे जाते हैं, उसमें इन्फ्लेक्शनल मार्फिम देखा जाता है, डेरिवेशनल मार्फिम देखा जाता है, वो सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसमें वो पोस्ट फिक्स और इनफिक्स और मैंने प्री फिक्स और फिक्स आपको सारे बताए थे, ये आपने मार्फोलॉजी में देखने। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे वो पूछ लें शॉर्ट क्वेश्चन में। तो फोनेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन साउंड मेकिंग स्पेशली दोज हु साउंड इन अ स्पीच जनरली डिवाइडेड इनटू द आर्टिकुलेटरी, अक्यूस्टिक, ऑडिटरी, फोनेटिक्स। आपने इसको देखना है, ये भी असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा अभी। फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। आप में से कोई इसमें लिखने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ साथ? कौन सा स्टूडेंट है जो मेरी हेल्प करना चाहता है साथ साथ? फोनोलॉजी, प्रैग्मेटिक, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ द लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को देखते हैं। सिमेंटिक क्या होता है, मीनिंग के लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। ये भी हमने सारा देखा है, इसको देख लीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिंटैक्स के सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसे होती है, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। द स्टडी ऑफ द रूल गवर्न बाय द वे वर्ड आर द मार्फिम्स आर कंबाइंड इन द फ्रेज, ठीक है जी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हैं सारे, इसको आपने देखना है। एडवर्ब्स, एडवर्बियल, अफिक्स और एस्पेक्ट्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, बाउंड मार्फिम, सर्कमफिक्स और क्लास और कंपोजिशंस, कंपाउंडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कोऑर्डिनेशंस एंड डिक्लेरेटिव डेरिवेशंस। इन फाइनाइट वर्ब हमने देखे थे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, वर्ब विच कैरीज टेंस, नंबर्स एंड द मूड डिस्टिंक्शन। फाइनाइट वर्ब्स can occurs on their own in an independent class, contrast with the non finite verbs which are infinitive and particle। और फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट जो होते हैं उसमें इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, जेरेंड्स हैं, ये सारे नॉन फाइनाइट हैं। फ्री मार्फिम्स, मार्फिम which can stand alone to make word itself contrast with the bound मार्फिम। फंक्शन वर्ड्स, हेड फाइनल्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एक और स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट एक देना है आपको। देखिए मैं कैसी कैसी चीज़ें आपके लिए तैयार करता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, व्हाट इज़ एडजेक्टिव? आप में से कौन सा स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि एक एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी नाउन को, प्रोनाउन को। विल डिस्कस अबाउट दिस। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। बाज़ औक़ात सी के और सी लास्ट में आ रहा हो तो वो खा साउंड दे रहा होता है, तो वो इसमें सिंपली एक आप असूल याद रखें कि जिस सेंटेंस, जिस वर्ड के अंदर यानी ये सी के आ रहा हो तो खा साउंड ये देता है बेसिकली दिस साउंड। उससे पहले एक सिंगल वावल आएगा, ठीक है, चाहे वो सी के आए, ई आए, ओ आए, आई ओ यू आए, तो उसके बाद जो साउंड होगी वो खा साउंड बनेगी, ठीक है। उसके पहले सिंगल वावल आएगा, जैसे ये ब्लैक है तो बैक है, डेक है, तो इसमें भी देखें सी के आ रहा है, उसके पहले सिंगल वावल है, इसमें भी सिंगल वावल है, इसके पहले भी सिंगल वावल है। जस्ट लिटिल सा कंसेप्ट है, छोटा सा, याद रखिएगा। Now we are going to discuss about this. If you will join us in future, I will be teaching you about. मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लास का कंसेप्ट दूंगा।
अच्छा जी, व्हाट इज एडजेक्टिव? अली इज इनोसेंट बॉय। अब यहाँ पे जो इनोसेंट है ये बॉय का क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये उसका क्या है, ये नाउन का एडजेक्टिव है। यानी एक एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। वी यूज द एडजेक्टिव टू टेल फीलिंग्स। हम एक एडजेक्टिव को कब इस्तेमाल करते हैं, यानी आईएनजी वाले एडजेक्टिव को और ईडी वाले एडजेक्टिव को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपनी टेम्परेरी फीलिंग दे रहे होते हैं, उसको हम ईडी से वाले एडजेक्टिव से बयान करते हैं। जैसे आई एम बोर्ड, ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब बोर्ड जो है ये भी टेम्परेरी फीलिंग है ना, बाद में कुछ और हो जाऊंगा। शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड भी टेम्परेरी हुई है, एक्साइटेड भी टेम्परेरी हम हुए हैं, बोर्ड भी। जब भी इस तरह की सिचुएशन बतानी होती है, आई एम बोर्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो इस तरह की सिचुएशन बताने के लिए हम ईडी वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एक ईडी वाला एडजेक्टिव होता है, एक आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है। तो आईएनजी वाला एडजेक्टिव कब इस्तेमाल करते हैं? द यूजेज ऑफ द आईएनजी एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव हैं और ये भी एडजेक्टिव हैं, याद रखें। सो व्हेन वी वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वो बताने के लिए हम क्या बताते हैं? रिजल्टेंट वैल्यू बताने के लिए द ट्रिप वाज एक्साइटिंग, कि जो ट्रिप हमने यानी विज़िट किया है या जो चीज़ प्लेस हमने विज़िट की है वो बड़ी एक्साइटिंग थी, उसका ओवरऑल रिजल्ट मैंने बताया। द ट्रिप वाज एक्साइटिंग, ही इज़ अ बोरिंग पर्सन। तो अब ये रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो हम बता रहे हैं, तो वो हम आईएनजी वाले एडजेक्टिव में बताते हैं। ये भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास जो है ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, बाकी एडवर्ब क्लास जो है और नाउन क्लास जो है वो फिर कभी आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको जस्ट अभी बताने लगा हूँ कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लास। वी कैन कॉल इट रिलेटिव क्लास। सो मैं कहता हूं ये क्वालिफाई क्या करता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव क्लॉज कह लें या एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव जो हमारे प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं? वो है हु और whom, where और which, that। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, या आप इसको एडजेक्टिव क्लास के साथ जो इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। इनको नोट कर लें भले, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो लिखूँगा, तो आपने अब पहचानना है। अच्छा, एक होते हैं रिलेटिव, ये प्रोनाउन थे, और एक रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। फिर हमने ये पहचानना है कि एक एडवर्ब, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्ब क्लास है और ये एडजेक्टिव क्लास है? लेट्स सी। ये एडवर्ब प्रोनाउन है और ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, वो भी इन्हीं तरह के होते हैं, तो कंफ्यूज करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। वो है व्हेन, व्हाई और वेयर और हाउ। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये एडजेक्टिव क्लास के साथ इस्तेमाल होते हैं जब ये एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी एडवर्ब में कोई चीज़ वर्ब के अंदर इजाफा करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव। आई नो द प्लेस
where she lives, ठीक है। I know the place, I know the place, यहाँ पे place है। अगर तो इससे पहले यानी इस वेयर, ये है ना बेसिकली, इसके बाद ये सारी क्लास आ रही है। अगर तो इस वर्ड से पहले नाउन है तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि हमेशा जो नाउन होता है, अगर नाउन में इजाफा क्या करता है, हमेशा एडजेक्टिव करता है, उसमें एडवर्ब नहीं करता। तो अगर तो वेयर से पहले हमारे यहाँ पे कोई वर्ब होगा तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये प्लेस जो है ये हमारा नाउन है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरी कौन सी क्लास है, ये एडजेक्टिव मेरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा मेरा बन रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसको मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है, तो फिर कैसे देखूँगा, आई नो वेयर ही लिव, वेयर ही लिव। अगर यहाँ पे देखें तो वेयर से पहले मेरे वर्ब है, अब ये मेरा रिलेटिव एडवर्ब है ये वाला, अब वेयर मेरा क्या बन गया, एडवर्ब। तो इस तरह से हम यानी एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की पहचान कर सकते हैं। तो हियर इज इट इज एडवर्ब एंड देयर ओवर देयर इट वाज एडजेक्टिव relative pronouns. So adverb relative pronouns and adjective relative pronouns. Hope you got the points and you have learned a lot with us. Inshallah you'll be learning in future as well. Let me close this recorders.